قسط نمبر 17۔ ارے بختی تم یہاں، زارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو، لیکن زارا کو دیکھ کر رابا کے چہرے کی ایوایاں اڑ گئی۔ ایک بار پھر زارا کا سامنا کر کے وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹی، جس کا کرب اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ نرگس نے زارا اور رابا کو دیکھ کر کہا، یہ کون ہے؟ رابا کیا بتاتی میری رسوا کا تباہی کا مقام۔ زارا نے اس کی خاموشی دیکھ کر خود ہی کہا، میں زارا ہوں۔ اور اب نرگس نے ان سے ہاتھ ملایا، میں رابا کی ساس ہوں۔ اوہ، یہ بہت اچھا، ایوا آج اب سے ملاقات ہوگی، یہ میرے ساتھ یہی میرا گھر ہے۔ رابا نہیں جانا چاہتی تھی اس گھر میں دوبارہ، جس کی در و دیوار میں اس کی لاچارگی کی چیخیں دفن تھیں، جہاں اس کی معصومیت اور عزت ایوس کی بھینٹ چڑھی تھیں۔ ڈرو مت بختی، میں نے وہ گھر چینج کر لیا ہے۔ زارا زبردستی لے گئی ان کو۔ گراؤنڈ فلور پر اس کا پارلر تھا اور فرسٹ فلور پر گھر۔ زار نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ آپ کا پوتا ہے؟ وہ زیان کو دیکھ کر بولی، جی میرا پوتا ہے یہ۔ پھر نرگس سے باتیں کرنے لگی، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، میں بہت پرسکون تھی اس کے ساتھ، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں کہ اسے اپنی چار دیواری میں بھی تحفظ نہ دے سکی، جس کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ نرگس بھی افسوس سے بولی، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے بہن، اس کی بد قسمتی میں غلطی میری بھی تھی، جس پر میں اس سے 1000 بار معافی بھی مانگوں تو اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات ضرور کہونگی، یہ اپنے لیے تو بدبخت رہی، لیکن جہاں جہاں اس کے قدم پڑے ان کے بخت اس کے قدموں سے کھلے۔ مسز جمال کے پاس تھی تب وہ بے اولاد تھیں، اس کے جاتے ہی 50 سال کی عمر میں ان کی گود ہری۔ معجزہ تھا ان کا اس عمر میں ماں بننا۔ جب میرے یہاں آئی تو میری بیٹی کی کسٹڈی کے کیس کا فیصلہ 5 سال بعد میرے حق میں ایوا۔ نرگس اسے پیار سے دیکھ کر بولی، واقعی اپنے ٹھیک کہا، بہت بخت آور ہے یہ۔ ہمارے حالات بھی ایسے بدلے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گیما اور سب بدل گیا، اور بہت سی خواہشات پوری ایو۔ اب سے مل کر میں کتنی خوش ایو آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اب جیسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو بختی جیسی بچی کو اپنے بچوں کا بخت بنا لیتے، ورنہ یہ سب تو فلم ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ آپ کے چہرے میں حقیقت پا۔ اب یقین کریں، جب یہ پچھلی بار مجھ سے ملی تھی میں اس پر بہت غصہ تھی کہ یہ میرے گھر سے بھاگی ہے کسی کے ساتھ، اور مجھے وہاں سے گھر بھی بدلنا پڑا کیونکہ کچھ نہیں چہرے اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن جب سچا کا سامنا ایوا تو خود کا سامنا کرنا بھی مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں اور ایک بیٹی کی ماں بھی۔ جنہوں نے اس کا استحصال کیا وہ بعد میں میری طاق میں بھی تھے، لیکن میں نے گھر فوری بدل لیا۔ بختی یہ سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے آنسو اس کی گود میں گرے، میں دوسروں کلی بخت آور، اور کسی کے بخت میرے قدموں میں، اور میں خود اتنی بدبخت کہ خود زمانے کے قدموں میں۔ وہ اپنے دل کی آوازیں سنتی رہی۔ نرگس زارا کے منہ سے بھی سچا سن کر مزد مطمئن ایو کہ اس کا یقین جھوٹا نہیں ثابت ایوا۔ بختی نے اسے اپنے بارے میں سچ بتایا تھا، جھوٹ فریب سے کام نہیں لیا تھا۔ نرگس کی محبت رابا کی سچا پر مزد اس سے مضبوط ہو گئی۔ زارا آخر میں بولی، اگر یہ میرے ساتھ اس وقت ہوتی تو شاید ان لوگوں کو پہچان لیتی تو میں ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاتی۔ عزت کی 2 دن بعد فلائٹ تھی، وہ اینڈ تک ضد لگائے بیٹھا رہا کہ وہ رابا کو ساتھ نہیں لے جائے گا، اور نرگس بھی بضد تھی کہ وہ رابا کے بغیر اسے جانے نہیں دے گی۔ نرگس کچن میں مصروف تھی، وہ سیدھا رابا کے کمرے میں گیا۔ سنو، وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہے۔ امی کو تم خود منع کرو کہ تم نے میرے ساتھ نہیں جانا۔ اگر امی نے تمہیں میرے ساتھ وہاں بھیجا تو یاد رکھنا بہت برا سلوک کروں گا تمہاری ساتھ، کیونکہ وہاں نہ تو نازو ہوگی، نہ ساجد چاچا کا گھر، اور نہ ہی تمہاری سب سے بڑی ڈھال میری ماں۔ رابا سہم کر بولی، میں نے ان کو بہت منع کیا، وہ نہیں سن رہے میری بھی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم ہی نے ان کو فورس کیا ہے، ورنہ آپ ہر الزام مجھ پر کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کیونکہ تم زمانے بھر کی جھوٹی ہو، شرافت اور معصومیت کا نقاب لگائے پھرتی ہو۔ وہ اسی کی ٹون میں بولی، اچھی بات ہے آپ کو میں نقاب میں ہی نظر آتی ہوں، میرے اصلی چہرے کی دید آپ کے لیے ناقابل دید بھی ہو سکتی ہے۔
اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا اس کے منہ پر۔ جواب طلبی اندے کی میرے ساتھ تو زبان کھینچ لو نگاہ حلق سے۔ رابعہ اس کے کٹھور پن پر اسے دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں میرے ساتھ جانے کی غلطی مت کرنا۔ میری برداشت جہاں جہاں جواب دے گی ایسے کا تمانچے تمیاری منہ پر پڑیں گے۔ گوپال تھکا ہارا کام سے واپس آیا گھر تو آگے بابو کو اپنے گھر دیکھ کر ششد رہ گیا۔ نمستے چاچا۔ گوپال کا غصہ اس کے چہرے پر چھلکنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیوی فوراً بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے گھر مہمان سے بات کرنے کا؟ رینی دیں چاچی۔ چاچا تھکا ہارا آیا ہے۔ اصلی لہجے میں تھکاوٹ سے ذرا تیزی۔ ایک چاچا کے ذرا سنبھل کر بات کیا کرو، اس سے تمہارا ہونے والا جمع ہے یہ پانالف۔ گوپال کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ بندیا اور یہ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اصلی اپنی بندیا کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کا بیاہ اس کے ساتھ نہیں رچا سکتا۔ دیوی اکڑ کر بولی۔ کیوں کیا خرابی ہے اس میں؟ بتا ذرا۔ مجھے نہیں پسند یہ اپنی بیٹی کلی۔ گوپال منہ پھیر کر بولا۔ بابو اینستی ایوی مونچھوں کو تا دے کر بولا۔ چاچا تجھے کیا پسند ہے یہ میں جانتا ہوں۔ گوپال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لے۔ دیکھو گوپال، مجھے پسند ہے یہ اور تمہاری بیٹی کو بھی۔ اب تمہیں پسند ہو یا نہ ہو میں نے بیاہ بندیا کا اسی سے کرنا ہے۔ گوپال غصے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بابو اس کے پیچھے آیا۔ وہ چاچا مان جا شرافت سے ورنہ تیری چڑیا اڑا کر لے جانے گا میں۔ آخر کو بختی کے ملنے تک میرے لطف کا کو سامان تو ہونا چاہیے۔ کمینے تجھے میری بیٹی ہی نظر تھی پیسانی کلی۔ ظاہر سی بات ہے چاچا تو نے بھی تو میری بختی 2 سال سے چھپا رکھی ہے نا۔ آج بتا دے اس کا پتہ، میں چھوڑ دوں گا تیری بیٹی کا پیچھا۔ مجھے نہیں پتا بختی کہاں ہے چاچا، ابھی تک میں تیرا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ اپنی کھیڑیوں سے زمین کی مٹی اکھاڑ کر بولا۔ نیچے دیکھ، اگر بندیا کو تو نے میرے ساتھ رخصت نہ کیا تو تیری عزت پوری برادری کے سامنے خاک میں ملا دوں گا۔ میرا منہ بند ہے تو بھی اپنا منہ بند رکھ، ورنہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا کفن تیار رکھ۔ گوپال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ بابو بہت اثر رسوخ والا بندہ تھا۔ گوپال کو اپنی اور سب کی عزت بچانے کی خاطر اپنی بیٹی بندیا بابو کے ساتھ رخصت کرنی پڑی۔ بابو اسے بیاہ کر کراچی لے آیا۔ بندیا بہت خوش تھی بابو کے ساتھ شادی کے ابتدائی دنوں میں، لیکن اس کی عادتوں اور جرم بھری دنیا سے وہ زیادہ دن بے خبر نہ رہ سکی۔ بابو کے جوئے کے اڈے تھے، وہ شراب بھی پیتا تھا اور کوٹھوں پر توافوہے کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے۔ بندیا نے شروع میں برداشت کیا اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بیکار۔ اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن بابو کے علم میں آتے ہی بابو نے اسے قید کر لیا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے باوجود ہر طرح کا ظلم وہ بندیا کے ساتھ کرتا اور اسے بار بار یاد دلاتا کہ جب تک تیرا باپ بختی کو میرے حوالے نہیں کرتا میں تجھے اسی حال میں قید رکھوں گا۔ گوپال اپنی بیٹی کے پیچھے 2 بار کراچی آیا، پر بابو کا بھی اسے پتا نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ گوپال کو بختی رہ کر یاد ہے، وہ میری بختی دیکھ تجھے خود سے جدا کیا نہ تیری بد دعا لگ مجھے۔ وہ روتا روتا احمد کے گھر گیا جہاں اس نے بختی کو چھوڑا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ایوا کہ احمد صاحب انتقال کر چکے ہیں اور ان کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں کی ہو گئی۔ گوپال پاگلوں کی طرح سر پیٹ کر رویا۔ میں تجھے دیکھنے، تجھ سے ملنے آیا تھا، تجھ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ کہاں چلی گئی تو میری بچی؟ کہاں تلاش کروں تجھے بھی؟ میری دونوں بچیاں بابو کے خوف سے در بادر ہو گئی۔ بابو تیرا بیڑا غرق ہو، مل تو اب کی بار مجھے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنے گا۔ گوپال پاگلوں کی طرح گلی گلی اسے ڈھونڈتا رہا۔ عزت کے لندن جانے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ رابعہ کے بار بار انکار کرنے پر نرگس کو غصہ آ گیا۔ یہ کیا تم نے نانا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میں جو فیصلہ کر لوں ایک بار اس سے پلٹتی نہیں۔ میری فکر اتنی مت کرو، تم میں اپنے بڑے بیٹے کو بلا لوں گی۔ رابعہ دونوں ماں بیٹے کی ضد کی نظر ہو گئی اور عزت کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ عزت کا دل چاہا وہ الفار پورٹ پر ہی اسے چھوڑ کر چلا جائے، لیکن ماں کی ناراضگی کے ڈر سے ایسا نہ کر سکا۔
जहाज में वो बैठ चुके थे। राबा ने हमेशा जहाज आसमान पर उड़ते देखे थे। उसने कभी सोचा भी न था कि एक दिन आसमान पर उड़ते जहाजों में वो भी शामिल होगी। वो बहुत डर रही थी क्योंकि जहाज में होते हादसात वो घर में सुनती रहती थी। जहाज जब टेक ऑफ करने लगा तो उसने जोर से मुट्ठियां भींचकर आंखें मैच ले। जहाज अभी रनवे पर ही था। उसने ए सित्ता कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इज़्द ने इसकी तरफ देखा। वो बहुत डर रही थी। इज़्द को नहीं मालूम था कि अब आगे वो क्या करने वाली है। जहाज रनवे से जैसे ही ऊपर की तरफ उड़ा, राबा ने रोते एवी कमला बाआवाज पढ़ना शुरू कर दिया। सभी मुसाफिर इसकी तरफ मुतवज्जे होगी। इज़्द ने चुप कराया। क्या जाहिलियत है ये? क्यों सबको परेशान कर रही हो? बंद रखो अपना मुंह, वो उसके कान में बुड़बुड़ाया। पर ताबा की रोने की आवाज बुलंद हो गई। अल्फार एविस्टस इनके पास प्लीज मैम, अब डरे मत, कुछ नहीं होगा। आपके साथ और भी लोग हैं, वो देखें सब कितने सुकून से बैठे हैं। इज़्द को बहुत शर्मिंदगी और सबके सामने इसका रोना चीखों में बदल गया। अल्फार एविस्टस फिर पास अपनी मिसेस को खामोश करवाए, सभी को डिस्टर्ब कर रही है ये, वरना हम इस्लामाबाद अल्फार पोर्ट पर लैंड करके आपको उतार देंगे। उस तरह चलाकर ये बाकी मुसाफिरों को भी बदहवास कर रही है। इज़्द ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ा। राना अलिफ बा, मेरा तमाशा मत बना। उसने दोनों हाथों से इज़्द के हाथ थाम लिए। मुझे डर लग रहा है इज़्द, प्लीज मुझे नीचे उतार दे, मुझे वापस जाना है, अब बारोड ले जाए मुझे। इस जहाज में नहीं बैठना मुझे। राबा के साथ बैठी लड़की एनस पड़ी राबा की लंदन बारोड जाने वाली बात पर। वो अच्छे खासे ही नजसिम इज़्द की तरफ देखकर बोली, सर इनका पहला सफर है प्लेन में। इज़्द ने हाँ में सर हिलाया। ओके, ये इतना ही डर रही है तो आप इनको हक कर लें, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगी आपकी मिसेस। इज़्द को ऐसा ही करना पड़ा। राबा को कंधों से इसने बाहों के घेरे में लिया तो उसने दोनों हाथों से इज़्द के कोट को पकड़कर इसके कोट में बिल्लियों की तरह मुंह छुपा लिया। सभी लोग इन दोनों को देख रही थे। सफर भी 12 घंटों का था, लेकिन 1.2 घंटे बाद राबा कुछ रिलैक्स हो गई थी। पर इज़्द की नागवारी उसे नजर आ रही थी कि लंदन पहुंचकर इसकी खैर नहीं। 3.4 घंटे के बाद वो इज़्द से पूछने लगी, ये कब आएगा लंदन? इज़्द बोला 8 घंटों बाद। राबा की आंखें खिलीं। है 8 घंटों बाद? इनसे कहो ना तेज चला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इनके साथ बैठी लड़की फिर एनस। इज़्द खजिल सा होकर जवाब में मुस्कुराया और राबा को आंखें निकालकर खामोशी रहने का इशारा किया। इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। दुरूद शरीफ का वर्द करते करते वो कुछ देर बाद फिर बोली, अगर ये जहाज फट गया तो? इज़्द दांत चबाकर बोला, जहाज तो नहीं फटेगा, लेकिन अगर इसके बाद तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। वो इज़्द से डर कर चुप हो गई। इज़्द ने लेटने लगा और उसकी सीट भी लेटने के लिए पीछे की तो वो जोर से इज़्द का हाथ पकड़कर लेटी तो कुछ पिल सो गई। साथ बैठी लड़की को मासूम सी राबा अच्छी लगी। वो बार बार उसको देखती और मुस्कराती। लंदन पहुंच चुके थे वो। जहाज जब लैंड करने लगा तो राबा ने तब भी अच्छा खासा शोर मचाया। इज़्द का दिल चाहा वो इसे उठाकर जहाज से नीचे फेंक दे। इसके मुंह पर हाथ रखकर बच्चों की तरह इसे चुप करवाना पड़ा। इस लड़की ने राबा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और बातों में लगा लिया। जहाज लैंड करके रुक चुका था अपनी मंजिल पर। इज़्द ने शुक्र का सांस लिया। मिस्टर, आपकी वाइफ बहुत ही और इनोसेंट है, उसको प्यार से ट्रीट क्या करे और अगली बार उसे पाकिस्तान बाई रोड लेकर जागा। इज़्द और वो दोनों एनस पड़े। सभी मुसाफिर नीचे उतरने लगे। राबा ही जल्दी से उतरी इस खौफ से कि जहाज कहीं इसे दोबारा ना ले उड़े। तेजी से सीढ़ियां फलांगते एवी इसका पाहे मुड़ा और वो गिरते गिरते बची, लेकिन पाहे में मोच इज़्द से उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ आया और सामान उठाकर उसे व्हीलचेयर पर बाहर लाया। इज़्द की इतनी खामोशी किसी खतरे के तूफान से कम न थी। रास्ते में भी वो बिल्कुल खामोश रहा।
ताबा दिल ही दिल में इज़्द के तेवर देखकर अपनी खैर की दुआएं मांगने लगी। गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत से घर के पास आकर रुकी। सामान अंदर ड्राइवर लेकर गया, फिर इज़्द के हवाले चाबी करके खुद चला गया। वो लड़खड़ाती एवं गाड़ी से डरते डरते बाहर निकली। इज़्द ने सुर्ख होती आंखों से एक झटके से इसे गोद में उठाया और सीधा घर में दाखिल होकर उसे सोफे पर इस जोर से पटखा के वो करा कर रही, बात सुने, शीट अप। वो इस पर धाड़ा, खबरदार जो कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। राबा पहले ही डरी एवं थी, इसके धाड़ने पर मज़्द डर गई। इज़्द बेड पर जाकर ऊंधे मुंह जूते समेत ही लेट गया। राबा को भूख लग रही थी। इसने घड़ी में टाइम देखा तो काफी हैरान है, ये क्या यहाँ भी शाम हो रही है, और जब हम घर से निकले थे तब भी शाम थी। कितना लंबा सफर था और टाइम गुजरा ही नहीं। इसे भूख लग रही थी। वो कुछ खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं, फर्ज खोला वो भी खाली था। इज़्द को कैसे जगाती वो इसकी एम थी नहीं। अब चुपचाप वापस सोफे पर आकर लेटी तो बैल की आवाज पर उठ गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। बैल मुसलसल बज रही थी। इज़्द कमरे से बाहर आया और गेट खोला और कुछ पैकेट्स लेकर किचन में आया। राबा को वो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो थी ही नहीं। वो बॉक्स से जूस निकालकर फर्ज में रखने लगा। राबा उसे देखकर किचन में, मैं रख लेती हूं ये सब, आप चाहे आराम करें। जहां बैठी थी वहीं बैठी रहो, मेरे सर पर सवार होने की जरूरत नहीं। वो जैसे थी वैसे ही पलट गई। कुछ देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठा पिज्जा खाने लगा। राबा के पेट में चौहे दौड़ रही थे। वो खामोशी से देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो नदीदों की तरह? तुम्हारे लिए भी मंगवाया है, खा लेना। वो खा पी कर आराम से उठा। मेरे कमरे में आने की या मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, इस समझ। ये बराबर में दूसरा रूम है, यहां सो जाना। वो उसे हिदायत करता चला गया। इसके जाने के बाद राबा मेज पर एक और पिज़्ज़े को गौर से देखने लगी। ये है क्या? उसने जैसे ही चखा इसे पसंद न आया। उसने उठाकर फर्ज में रखा और जूस पीकर कमरे में गई। से अब अकेले सोने की आदत नहीं थी। वो बेड पर लेटी तो घबरा रही थी। नमाज कली उठी, नमाज पढ़कर कुरान पढ़ने लगी। नरगिस ने उसे नमाज कुरान हर चीज सिखा दी थी और ट्यूटर घर बुलवाकर लैंग्वेज कोर्स भी करवा दिया था। वो ज़ियां भी काफी थी। साल भर में वो सब कुछ सीख चुकी थी। कुरान पाक की तिलावत करते करते वो सो गई। इज़्द सुबह जागा और फ्रेश होकर ऑफिस चला गया। राबा की आंख जरा देर से खुली। उसे खाली पेट चक्कर आ रहे थे। किचन में एक फर्ज में सवा जूस के और कुछ न था। राबा ने किचन खंगाला, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने फिर से जूस पर गुजारा किया। इज़्द ऑफिस में इतना मसरूफ था कि उसे याद ही नहीं रहा कि राबा के पास लंच के लिए कुछ नहीं। वो मुसलसल 36 घंटों से भूखी थी। इससे ज्यादा भूख नहीं काट सकती थी। निढाल होकर सोफे पर गिर गई। ना इसके पास मोबाइल था, ना इज़्द का नंबर। रात को इज़्द घर आया तो उसे सोफे पर पड़ी राबा को देखकर याद आया। वो शक में भूल ही गया था। वो इसके पास आया। तुमने कुछ खाया? राबा ने सर उठाया और ना में हिलाया। इसकी निढाल आंखों से लग रहा था कि इसने कुछ नहीं खाया। वो जल्दी से बाहर गया और बर्गर लेकर आया। ये लो, खा लो। उसने बॉक्स इसके सामने रखा और कमरे में जाने लगा। वो प्लेट लेने के लिए उठी तो चकरा कर गिरी। वो इसके पास आया। क्या एवा तुम है? वो बंद होती आंखों से उसे देखने लगी। तुमने कल से कुछ नहीं खाया किया? जब प्लेन में बैठे थे तब से कुछ नहीं खाया। इज़्द को बहुत शर्मिंदगी और सारी ज्यादती अपनी जगह थी। वो कम अज कम उसे भूख से तो ना मारता। उसे थाम कर सोफे पर बिठाया और बर्गर खोलकर उसके हाथ में दिया। तुम ये कि मैं आता हूं कुछ देर में। वो बाहर चला गया और उसे रास्ते में भी बहुत अफसोस एवा कि वो 36 घंटों से भूखी थी, सिर्फ इसकी लापरवाह की वजह से। आपको मना भी किया था उम्मी मत भेजें उसे मेरे साथ। अब कौन देखेगा उसे? अकेले रहने की आदत है मुझे।
अब सब कुछ घर में भी पूरा करने की जिम्मेदारी अलग, घर जल्दी आने की अलग, इसका ख्याल रखने की अलग, ऑफिस वर्क की अलग। वो काफी गुस्से में था। यूटिलिटी स्टोर से वो फल सब्जियां, कुकिंग ऑयल, दूध, ब्रेड, आटा, तकरीबन हर चीज लेने लगा जो उसे जरूरी लगा और याद रहा। निमल लाहौर आ चुकी थी और हाफिज साहिब सऊदिया रवाना हो चुके थे। मिसेस आरिफ और उनकी सास ने इसे अपने बेटियों की तरह वेलकम किया। यहाँ आने से पहले निमल बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन आरिफ की फैमिली से मिलकर काफी रिलैक्स है। वो कभी अपने बाबा से दूर नहीं थी। इसे बाबा की याद बार बार रुलाती, लेकिन सब्र करना था इसे, और सब्र आते आते आ ही गया। काफी दिन गुजर गए थे, वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता आरिफ के यहाँ आने वाले पड़ोसियों और रिश्तेदारों से वो मिलती। किचन में वो चाय बनाने में मसरूफ थी। जब आरिफ की बेटी मोमिल एक छोटा सा बच्चा उठाकर ला, बाजी ये देखें कितना प्यारा बच्चा है। निमल ने इस बच्चे को देखा, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। निमल ने इसे गोद में लेना चाहा पर वो ना आया। किसका बच्चा है ये? सामने वाली आंटी है, इनका पोता है। क्या नाम है इसका? जियान। निमल ने इसे जबरदस्ती लिया गोद में तो वो रोने लग गया। निमल बाहर इलान में बैठी नरगिस को सलाम किया। नरगिस मिसेस आरिफ की तरफ देखकर बोली, ये कौन है? मेरी भतीजी है ये। नरगिस उसे देखकर मुस्कुरा। जियान रोता एवा नरगिस के पास गया। ये नी चेहरे देखकर डर जाता है जरा, एक दो बार देख ले तो घुल मिल जाता है। फिर वो सब बातें करते रही। निमल बार बार बच्चे को प्यार से देखती। वो शर्माकर दादों के आंचल में छप जाता। नरगिस ने सौदा सलफ लेने बाजार जाना था, वो जियान को आरिफ के घर छोड़कर। निमल ने इसे कुछ ही देर में अपने साथ बहला लिया। नरगिस वापस जियान सो रहा था, वो वापस घर और जाजुब को फोन करके अपने पास आने को कहा। जाजुब ने दिन न बताया और आने की हामी भर ली। जियान निमल के साथ बहुत अटैच हो गया था। वो जियान कली अक्सर नरगिस के घर चली जाती। आज इत्तेफाक से नरगिस की तबीयत अचानक खराब हो गई। निमल उसी के घर में थी। तुम जियान का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ क्लिनिक से होकर। आंटी आप अकेली कैसे जाएगी? मैं साथ चलती हूँ आपके। नरगिस मुस्कुरा, अरे बेटा सारी जिंदगी अकेले गुजार दी है मैंने, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी इन। निमल दरवाजा बंद करके जियान के पास वो सो रहा था। कुछ देर में बाहर डोर बेल बजी। वो दरवाजे पर कौन है? बाहर आरिफ की बेटी मोमिल थी। वो अंदर जियान के रोने की आवाज वो दोनों जल्दी से अंदर गए। जियान जाग गया था। आपको दादो बुला रही है, मैं आती हूँ कुछ देर में, आंटी क्लिनिक है वो इजा है। निमल जियान के साथ खेलने में इतनी मसरूफ थी कि उसे मोमिल के जाने पर दरवाजा बंद करना याद ही नहीं रहा। जियान को भूख लग रही थी। वो उसे खिलौने देकर किचन में और उसके लिए नूडल्स ढूंढने लगी तो एकदम उसे भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू और अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जैसे ही पलटी तो सामने खड़े शख्स को देखकर इसके एविश उड़ गई। सच्ची कहानी बदबख्त, किस्त नंबर 18। अचानक निमल को भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जैसे ही पलटी तो सामने खड़े शख्स को देखकर इसके एविश उड़ गई। सामने खड़ा शख्स भी निमल को देखकर अपने हवासों में ना रहा। तुम मम्मम यहां तक मेरा पीछा करते करते एक बार मुझे पूरे जुग में रुसवा करके सुकून नहीं मिला, जो दूसरी बार मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले हो। सामने खड़े हैरत के समंदर में गौताजन जाजुब के लब खिले। मैं तुम्हारी पीछे नहीं आया, ना तुम्हें बर्बाद करने आया हूं मैं तो अपने। निमल ने इसकी बात ना सुनी और हाथ जोड़कर बोली, खुदा रसूल का वास्ता है तुम्हें चले जाए यहां से, जीने दो मुझे। पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर तक छोड़ना पड़ा। अब तुम क्या चाहती हो, दुनिया छोड़ दूं मैं? मैंने ऐसा कब? उसने फिर जाजुब की बात ना सुनी। चले जा यहां से, अब मैं मस्त बदनामी के लेबल अपने माथे पर नहीं चिपका सकती।
जियान की रोने की आवाज पर वो फिर बोली, मेरा बच्चा रो रहा है, ये देखो मेरे जुड़े हाथ, चले जा मेरे घर से। वो रो देने को थी। जाजुब इसके मुंह से बच्चे का नाम सुनकर उल्टे कदमों पलटा। निमल भागते एवी जल्दी से दरवाजा बंद गया। फिर रोते एवी जियान को गोद में लेकर खुद भी रो पड़ी। ए मेरे रब, ये कैसा इम्तिहान है, ये यहाँ कैसे पहुंचा? मेरा जीना मुहाल कर दिया है इस एक शख्स ने। अगर अभी नरगिस आंटी आ जाती तो क्या होता? उसने बदनामी के खौफ से झुरझुरी ली। गाड़ी वापसी के रास्ते पर ड्राइव करते एवी ये सोच सोच कर जाजुब का दिमाग फट रहा था कि वो इसके घर में क्या कर रही थी। क्या वो इज़्द की बीवी थी? अगर इज़्द शादी है तो उम्मी ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, या मुझे बताना भी मुनासिब ना समझा? अगर ये वाकई में इज़्द की बीवी है तो मैं तो सारी जिंदगी इज़्द को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वो मुझसे मज़ नफरत करेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो बहुत बेचैन और बेकरार था कि ये क्या हो गया। क्या इसी का नाम किस्मत है जो मुंह के बिल भी इंसान को गिरा सकती है? चारों तरफ से एक बार फिर मायूसी की इतने गहराइयों में वो जा गिरा। इज़्द का रवैया दिन ब दिन राबा से सख्त होता चला गया। इसकी नजर में रत्ती भर भी राबा की को वक़ात को हैसियत न थी। राबा सारा दिन घर में बंद रहती और दर वो दीवार से बातें करती रहती। खिड़की से बाहर का मंजर देखती जहां इसके घर से कुछ फासले पर छोटी सी झील थी जिसके किनारे अक्सर लोग आते जाते रहते। वो वहां की औरतों को उदे नंगे लिबास और पेंट शर्ट में देखकर बहुत हैरान होती। इसका घर छोटे से कोच की तरह था जिसके चारों अतराफे हरियाली थी और बाकी के घर कुछ कुछ फासले पर थे। आसपास का सब्जा और झील का मंजर बेइंतहा खूबसूरत था, लेकिन वो ये सब बस दौर से ही देख सकती थी। कभी कभी इसका दिल मचल जाता कि वो भी इस पर सुकून सी झील के किनारे जाकर बैठे, लेकिन वो सिर्फ ऐसा सोच ही सकती थी। यहां ना को पड़ोस था, ना को बात करने या सुनने वाला। इस सुबह बगैर नाश्ते के ऑफिस जाता और रात का खाना खाकर घर आता। जाते एवी वो घर लॉक करके जाता और वापस आकर अपने हाथों से खोलता। राबा के हाथ की बनी को चीज वो अपने हल्क से उतारनी गवारा नहीं करता था और न ही इसके साथ को बात करता था। राबा इसके लिए घर में पड़ी को फजूल सी बेजान शय थी। इज़्द आज घर शाम को जल्दी आया तो उसके साथ इसका दोस्त असवद था। इस्लामो अलैकुम भाभी, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का एहसान है, आप कैसे हैं? आप हैरान हो रही है मुझे यहाँ देखकर? जी नहीं, हैरान नहीं हो। असवद मुस्कुराया। वैसे मैं आपको देखकर यहाँ बहुत हैरान हूँ। क्यों, मेरी मौजूदगी आपके लिए हैरान कुन क्यों है? वो इज़्द के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्योंकि मेरा दोस्त परेशान बहुत है। इज़्द ने उसे आंखें गिवाहे, बकवास न कर, मजाक कर रहा हूँ भाभी, मुआफ कजीगा। जवाब में राबा खामोश रही और अपने कमरे में जाने लगी। भाभी चाय तो बना दें अच्छी सी। जी। वो किचन में। इज़्द इस पर सवार अवा, ये किया तो असको भाभी भाभी कह रहा है तो अच्छी तरह से जानता है सारी हकीकत। मैं इसे बीवी समझूं ना समझूं, तूने इससे फौरन रिश्ता जोड़ लिया। यार भाभी ही कह सकता हूं, अब उसे नाम से पुकारना मुनासिब नहीं लगता। तुझे जरूरत क्या है इसे पुकारने की? बस कर यार बस। ये मेरी इससे पहली मुलाकात नहीं, 3 बार पाकिस्तान में तेरे घर गया था। अच्छी तरह जानती है वो मुझे। मुरव्वत भी को चीज होती है यार। राबा सब कुछ सुन रही थी। वो आपस में इसी तरह सवाल जवाब करते रही एक दूसरे से। इनकी बातों से राबा को अंदाजा हो गया कि असवद इसके बारे में सारी हकीकत जानता है। चाय के साथ उसे असवद के सामने आते एवी पहली बार शर्मिंदगी आई कि वो मुझे देखकर क्या सोचता होगा। चाय इनको देकर वो कमरे चली गई। इज़्द कुछ देर बाद अंदर आया। वो हसब मामूल कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। असवद यहीं खाना केगा, जो कुछ मंगवाना है बता दो, मैं लिस्ट बना लेता हूं। अब चाहे मैं कुछ देर में बता देती हूं। थोड़ी देर बाद एक पेपर उसने इज़्द के सामने रखा जिसमें हर जरूरत की चीज इंग्लिश में लिखी देखकर वो काफी हैरान हुआ।
किरताबा पढ़ी लिखी भी है। दोनों दोस्त मार्केट से सामान लाए। राबा ने 2 घंटों में बिरयानी, कबाब, मटन कढ़ाई, खीर, सलाद वगैरह सब तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाकर इज़्ज़त को आवाज दी। असवद और इज़्ज़त दोनों उसकी फुर्ती पर हैरान। एबी, वाओ भाभी, अपने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी इतना कुछ अकेले बना लिया। इज़्ज़त ने आज पहली बार उसके हाथ का खाना खाया। बहुत लजीज खाना था। असवद के मुंह से तो तारीफ के जुमले खत्म होने का नाम नहीं ले रही थे। इज़्ज़त ने भी आज काफी दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया था। बाबू के 2 जुए के अड्डों पर छापा पड़ा। पुलिस न सिर्फ इसके बंदे उठाकर ले बल्कि इसके 2 अड्डे मुस्तकिल बंद कर दी। लाखों का इसे नुकसान हुआ। उसने सारी कसर बिंदिया पर निकाली। जब से तो यह नामनहवस मेरी जिंदगी में, तबाइयों ने मुझे ताड़ लिया है। हर रोज को ना कौन पंचायत खड़ी होती है मेरे सामने। वो इसकी मार खा कर रोते एवी बोली, हाँ तो छोड़ दूं ना मुझे, क्यों बांदी बना कर रखा एवा है। वो अपने जूते से इसका हाथ कुचल कर बोला, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा बाप बख्ती मेरे हवाले नहीं करता। वो उसके जूते से अपना हाथ खींचकर बोली, तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूं, हमें नहीं पता बख्ती कहाँ है। भाग्य है वो अपने किसी यार के साथ। ना ना ना, बख्ती भागी नहीं, तेरे बाप ने चेपा एओ है अपने लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बाबू की बात पर हैरानी से बोली, बख्ती का कोई यार नहीं। हाँ अलबत्ता तेरा बाप इसका दीवाना जरूर है। बिंदिया अपना रोना भूल गई। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुझे और तेरे बाप से तेरा दिल मेला हो, लेकिन तो असरार करती है। तो फिर सुन, बख्ती का आशिक है तेरा बाप, नाजायज ताल्लुक है तेरे बाप का इसके साथ। मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे बाप की आशिकी का। बिंदिया को ऐसे लगा उसे किसी ने आग में डाल दिया हो। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, मेरे पत्ता ऐसे नहीं। बाबू कानों काफ हाथ लगाकर बोला, झूठ बोलूं तो भगवान मुझे कभी मुआफ ना करे। तेरा बाप असली मुझसे इतनी नफरत करता है कि मैंने बख्ती के साथ इसे रंगे हाथों पकड़ा था। बख्ती मुझे पसंद है। तेरे बाप को मैंने समझाया तो उसने बख्ती को ही गायब कर दिया। अब बख्ती को वापस हासिल करने के लिए मुझे तेरे साथ प्यार का बया का गेम खेलना पड़ा। अब ये खेल तब खत्म होगा जब तेरा बाप बख्ती मुझे देगा। बाप की ये हकीकत जानकर बिंदिया को खुद से भी घन आने लगी। तेरे बाप को वो इतनी अजीज है, सब कुछ जानकर भी इसने तुझे मेरे हवाले कर दिया, लेकिन बख्ती नहीं की। बिंदिया का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। बाबू तो चला गया, लेकिन बिंदिया झोलियां भर भर कर बख्ती को बद्दुआएं देने लगी। कम जात, कम नस्ल, सी जलील इंसान की जलालत का ही बीज है। तो हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और मेरे बाप को भी हथिया लिया। जिस थाली में खाया इसी में छेद किया और मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी। एक बार, बस एक बार में निकल जाए यहां से, फिर देख मैं तुझे पाताल से भी निकाल कर लियाऊंगी और संसार करूंगी तुझे। तेरी वजह से मैं इस कैद में हूं। एक एक जुल्म का, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं तुझसे, और पत्ता जी आपको भी नहीं बख्शोहेगी मैं। इस कमीनी बदबख्त कली अपने मुझे, अपनी औलाद को इस नर्क में धकेल दिया। किसी को नहीं छोड़ोगी मैं, ना बाबू तुझे, ना बदबख्त तुझे, ना अपने बाप को। जाजुब बहुत परेशान था कि वो कैसे जाए नरगिस के पास। वो फिर से सामने एक और मुझे देखकर इसने अपने साथ कुछ कर लिया तो उसने नरगिस को कॉल मिला। हाल अहवाल के बाद वो बोला, अम्मी घर में उस वक्त को है? नहीं बेटा, क्यों? ओके मुझे आना था असली पूछा। नरगिस इसके आने का सुनकर खुश हो गई। उसने फौरन गाड़ी निकाली और नरगिस के पास पहुंचा। निमल आरिफ के घर में टेरेस पर खड़ी थी। जाजुब को गाड़ी से उतरता देखकर वो बुरी तरह चौंकी। वो गाड़ी से निकलकर अंदर गया। नरगिस ने इसे गिले से लगाया। वो अंदर नहीं गया। किसी के फोन आने पर वहीं से पलट गया। निमल नरगिस के साथ जाजुब को देखकर सोच में पड़ के इसका क्या रिश्ता था नरगिस आंटी के साथ।
जाजुब के यहाँ आने पर वो खुद भी बहुत परेशान थी। काफी दिन होगी उसने नरगिस के घर चक्कर ना लगाया, इस खौफ से कि कहीं जाजुब से इसका टकरा ना हो जाए। वो जिस बात से कतरा रही थी वही एवा। नरगिस ने इसे घर बुलवाया। निमल के बहाने बनाने पर भी नरगिस न मानी, इसे जाना पड़ा। वो लानिज में जियान के कपड़े बदल रही थी। जब उसे बाहर लान से मर्दाना आवाज आई, उसने जैसे ही बाहर झांका तो बाहर जाजुब था। इसका दिल जोर जोर से धड़का। तुमने वादा किया था मुझसे मेरे पास आने का। दोनों की आवाज उसे साफ सुना दे रही थी। नाराज तो ना हो यार निगाह जरूर, तुम झूठे हो बहुत। अब तो इज्जत भी नहीं यहां, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहां? कैसी बातें करती है यार, फिक्र है अपनी जान से भी ज्यादा। निमल ने बाहर हल्के से झांका। जाजुब ने नरगिस को गिले से लगाया, एवा था एक और झूठ। अब मैं ना तुमसे उस तरह मलना है ना को बात करनी है, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें आना होगा, अब मैं और नहीं सह सकती। अब इज्जत का बहाना भी नहीं तुम्हारी पास। सुना है मैंने इज्जत की शादी हो गई। नरगिस ने हाँ में सर हिलाया। और मुझे बुलाना तो दूर की बात, अपने बताया भी नहीं। कैसे बताती, बहुत मुश्किल हालात में इसकी शादी एव थी। और अगर तुम्हें बिला लेती तो एक नया तमाशा खड़ा कर देता वो तुम्हें यहां देखकर। इससे पहले कि जाजुब कुछ और पूछता, अंदर से झांकती निमल पर उसकी नजर पड़ी तो वो फौरन बोला, मुझे अब इजाजत दें फिर निगाह। नरगिस ने इसका हाथ पकड़ा। अब ए तो जाने नहीं दोनगी। इज्जत की शादी का सुनकर जाजुब को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वो सिर्फ सर हिलाकर पलट गया और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि वापस नहीं लूटेगा अब कभी भी। निमल ये मंजर देखकर और भी परेशान थी कि ये कौन था, क्या रिश्ता था नरगिस का इसके साथ। और नरगिस आंटी का बेटा क्यों जाजुब को यहाँ देखकर तमाशा बनाता, और जाजुब क्यों इज्जत की गैर मौजूदगी में यहाँ आता है। ऐसे हजारों सवाल इसके दिमाग में चल रही थे। आंटी ने तो उसे बताया था कि इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया था। फिर ये जाजुब कौन था जिससे नरगिस उस तरह बेटे से छप छप कर मलती है। बहुत अजीब अजीब ख्यालात इसके दिल व दिमाग में जाजुब और नरगिस को देखकर पनपने लगे। लेकिन वो कुछ भी जाजुब के मुतालिक पूछने से कासिर थी, क्योंकि जाजुब के साथ इसका अपना बहुत भयानक माजी अटैच था। इज्जत को लंदन में किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, वहां इसे 2 दिन रुकना था। वो राबा को साथ ले गया। वापसी पर वो ट्रेन पर चढ़ा ताबा के साथ तो अपना सूटकेस बाहर भूल गया। जल्दी से वो उतरा, लेकिन इसके वापस आने तक ट्रेन चल पड़ी। वो बाहर ही रह गया। राबा कली, वो लोग, वो शहर, वो मुल्क बिल्कुल नया था। उसे तो अपना एड्रेस भी नहीं मालूम था। वो रो पड़ी। आसपास लोगों ने पूछा तो वो अपना एड्रेस तक ना बता सकी। किसी ने इसे अगले स्टेशन पर उतरने का मशवरा दिया कि वहां उतरकर इंतजार कर ले या पुलिस से राब्ता करे। दूसरे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी वो उतर गए। वहां पिछले स्टेशन की तरह ज्यादा रश न था। राबा बोकेला बोकेला उधर उधर इज्जत को ढूंढने लगी। किससे पूछती और कैसे पूछती। एक तरफ खड़ी होकर वो रोने लगी। आ खुदाया, अब क्या करूं, मेरी मदद कर मेरे रब। काफी देर हो चुकी थी इसे आते जाते लोग देख कर रही थे। को पूछता तो वो नथिंग कहकर चुप हो जाती। वहां खड़े 2 6 से लड़के कब से इसे देख रही थे। से मुसलसल अकेला देखकर वो राबा के पीछे पड़ गई। राबा इनको अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो ये सित्ता इसके पीछे आने लगे। वो बहुत बुरी तरह से डर गई। रात का वक्त था, लोग भी वहां गिने चने थे। इसकी टांगें कपकपाने लगे। इज्जत कहाँ है आप, इजाहे जल्दी प्लीज, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो आयत करीमा पढ़ने लगी। वो लड़के मुसलसल इसके पीछे थे। अब वो 2 से 3 होगी। राबा जहां से चढ़ी थी वहीं दोबारा भागी। वो लड़के भी उसे घेरने कली इसके पीछे एवली। बिल्लो कलर की फिराक पर उसने शाल लपेटी एव थी। अपनी फिराक अटेई वो भागती एव सीढ़ियों के पास तो नीचे इज्जत को देखकर चला। इज्जत की पीठ थी इसकी तरफ। फिर भी इसने पहचान लिया।
इस पीछे पलटा तो वो फिराक अटेई भागती और सीढ़ियां उतर रही थी। इस सीढ़ियों के करीब गया तो वो भागकर दीवानावार उसके गिले से जा लगी। इज़्द की नज़र उसके पीछे आते लड़कों पर पड़ी तो उसने पूरी कुव्वत से राबा को अपनी बाहों के घेरे में लिया। वो जितनी तेजी से राबा की तरफ लपके थे, इज़्द की बाहों में इसे देखकर वो वहीं रुक गई। राबा धड़कते दिल और फूलती सांसों के साथ काफी देर इज़्द से लिपटी रही। इज़्द इसकी कुर्बत की खुशबू से पिघलने लगा। बड़ी मुश्किल से इसने राबा को खुद से दूर किया। कहाँ चलेगी थे अब मुझे छोड़कर? वो उसकी खौफजदा आंखों में झांक कर बोला, काश छोड़ सकता मैं तुम्हें। प्लीज इज़्द जो भी सजा देनी है दे दें, जिंदा जमीन में गाड़ दें, लेकिन मुझे उस तरह सरनरा छोड़ने की सजा ना दे प्लीज। वो इज़्द के आगे हाथ जोड़कर रो। इज़्द ने इसका हाथ थामा। रोना बंद करो, सब देख रही है। वो उसे अपने साथ लेकर अगली ट्रेन के इंतजार में बैठा। राबा इसका पूरा बाजू जोर से पकड़कर इसके साथ बैठी। इज़्द को एनस इग इसकी इस बचकाना हरकत पर तमेरी साथ ही हूं, भाग नहीं सकता मैं अपनी बदकिस्मती से। बाबू के आखिरी जुए का धंधा भी चौपट हो गया। ये सित्ता वो कर्जदार होता गया। बिंदिया ने एक बेटी को जन्म दिया। बाबू बेटी के जन्म पर हत्थे से उखड़ गया। ये क्या पैदा किया है तूने मेरे लिए? मुझे बेटा चाहे था, बेटी नहीं। ये भी तेरी तरह मनहवस है, पैदा होते ही बाप को कर्ज की दलदल में फंसा दिया। वो कर्ज की वजह से घर छप कर बैठा एवा था। फाकों की नौबत आ चुकी थी उन पर। सुबह शाम बिंदिया इसकी गालियां सुनती। दिल चाहता है मार डालो तुम दोनों को, जिस दिन से एहो मेरी जिंदगी में मेरा तख्त उलट कर रख दिया। अभी वो इसी को कोस रहा था कि बाहर दरवाजा जोर जोर से किसी ने पीटा। शश शश शश, कुछ मत बोलना, चुप। उसने बिंदिया को चुप रहने को कहा। बाबू हम जानते हैं तो अंदर ही है, बाहर निकल वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर ए जाएंगे। रामू की आवाज पर बाबू ने घबराकर जल्दी से गेट खोला। वो उसे धक्का देकर अंदर क्या चौहे की तरह बिल में छुपा बैठा है? मेरे 10 लाख रुपए लेकर उड़न छू हो गया। चल मेरी रकम वापस कर अभी के अभी, वरना। वो बाबू की कुनपट्टी पर गिन रख कर बोला। तो कमरे से बच्ची के रोने की आवाज। ये बच्ची की आवाज कहां से आ रही है? कौन है अंदर? रामू अपने 2 बंदों के साथ अंदर गया। बिंदिया अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। रामू को अंदर आता देखकर अपने आप को ढांपा। वाह बाबू वाह, क्या माल छुपा कर रखा एवा है तो ने यार। वो सर झुकाकर बोला, रामू सरकार पत्नी है मेरी। रामू गिन से अपन दाढ़ी खुजाकर बोला, वो अच्छा तेरी पत्नी है ये, वैसे है बड़ी खूबसूरत। वो कम सुन बरान आंखों वाली बेहद गोरी बिंदिया पर नजर टाए बोला, तेरा कर्ज मुआफ कर सकता हूं मैं एक शर्त पर। बाबू की खुशी से बाँछें खिली। जी सरकार, शर्त नहीं, अब हुक्म करे, बंदे की जान भी हाजिर है। तेरी जान लेकर मैंने क्या करना है? तेरी लागाचा 1 रात का 1 लाख। रामू की बात सुनकर बिंदिया चकरा कर रह गई। और बाबू तो इसके हुक्म का गुलाम था। सरकार में भी आपका, ये भी आपकी। रामू अपने बुंदों से बोला, उठा कर लिया उसे, और सुन अपनी बच्ची को अपने पास रख। सुबह का सूरज ढलने से पहले तेरी पत्नी तेरे पास होगी। बिंदिया ने बच्ची सीने से लगा ली, जो बाबू ने खींचकर इससे अलग की। रामू के बंदे उसे चीखता चलाता उठाकर लेगी। बच्ची का मुसलसल रोना बाबू से बर्दाश्त ना हो रहा था। उसने पहले तो खूब डटकर खुद शराब पी, फिर शराब के नशे से धत रोती और बच्ची को फीडर में शराब डालकर जबरदस्ती पिला दी। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। शुक्र है भगवान तूने इस मुसीबत को सुला दिया, वरना तो ये मेरा भेजा खा जाती। वो खुद भी एविश से बीगाना हो गया। बिंदिया को रामू के आदमी सुबह होते ही बाबू के पास छोड़ दी। वो जिंदा लाश की तरह मरते एवी कदमों के साथ अंदर तो चारपा पर अपनी बच्ची को देखा, जो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी और मुंह से झाग निकल रही थी इसके। उसने मुर्दा बच्ची गोद में लेकर जेनी जेवड़। बाबू भी उठ गया इसकी आवाज पर। मार डाला मेरी बच्ची को तो ने।
وہ بابو پر زخمی شیرنی کی طرح جھپٹی اور اسے مارنے لگی۔ بابو کا منہ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے زخمی ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے بندیا کو قابو میں کر کے چارپا کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ چارپا سے سر ٹکرا ٹکرا کر رو، ایک اپنی عزت نیلام ہونے پر، دوسرا اپنی کوکھ اجڑنے پر۔ رامو کے آدمی روز آتے اور اسے لے جاتے۔ رامو نے اپنے بستر کی زینت اسے صرف 3 ہی رات بنایا۔ اگلی 7 راتوں میں وہ بندیا کی آبرو کا سودا کسی اور کے ساتھ کرتا۔ ایک پل تو چاہا بندیا کا کہ وہ خود کشی کر لے، لیکن پھر بختی اور بابو سے انتقام لینے کی آگ اس کے اندر اتنی بھڑک اٹھی کہ اس آگ میں روز اپنا اب جلاتے جلاتے وہ جمنا با کے کوٹھے تک جا پہنچی اور اس کے ساتھ جسم فروشی کے دھندے میں شامل ہو گئی۔ اب پیسہ اس کے قدموں کی دھول بن چکا تھا۔ جمنا با کے کوٹھے پر بختی اور بندیا جیسی کا لڑکیاں تھیں جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسروں کی ایوس کی بھوک کو اپنا جسم پیش کر کے بھرتی تھیں۔ جمنا با کے کوٹھے سے اس نے اپنے گھر کے پتے پر ماں کو پیغام بھیجا، جس میں بختی اور گوپال کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ساری حقیقت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی کہا میں ان سب سے انتقام لے کر واپس ان جن کی وجہ سے وہ کوٹھے کی زینت بنی، جس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ بندیا کا یہ پیغام سن کر دیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور جو حال اس نے گوپال کا کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ گوپال اس کے پاہے پڑ پڑ کر کہتا رہا کہ یہ سب بابو کی چال ہے، بختی میری بیٹی تھی۔ لیکن دیوی نے ایک نہ سنی اور گوپال سے ایک ہی گھر میں رہ کر خود کو علیحدہ کر لیا۔ دیوی کے ساتھ ساتھ پال بھی باپ سے شدید نفرت کرنے لگی۔ گوپال کا رونا کسی نے نہ سنا۔ دیوی کراچی والے گھر میں واپس آئی۔ گوپال نے بہت کوشش کی پھر سے بندیا اور بابو کو ڈھونڈنے کی، پر دنوں ایسے لگتا تھا روپوش ہو چکے ہیں۔ گوپال ہر وقت روتا رہتا، لگ بددعا ہمیں اس بختی کی۔ دیوی کے ہر ظلم کا حساب اس کی بیٹی بندیا کو چکانا پڑا، پر دیوی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ اس کے آگے اس کا کیا مکافات کی صورت آیا ہے۔ وہ بھی دن رات بختی کو بددعائیں دیتی۔ گوپال بندیا کا سن کر بالکل ٹوٹ گیا تھا اور بستر سے جا لگا، لیکن اس کا پرسان حال کو نہ تھا، اپنا آپ اسے خود سنبھالنا پڑا۔ جازب واپس بلوچستان آ چکا تھا۔ شاہ جی اسے اتنا ڈسٹرب دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ نرگس بار بار اسے فون کر کے بلاتی، وہ بہانوں سے ٹالتا رہتا۔ شاہ جی نرگس سے بات کر کے اس کے پاس آیا۔ جازب یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ماں جی کو کیوں ترسا رہی ہو؟ ان سب حالات میں ان کا کیا دوش؟ تم نے اپنی سزا میں ان کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ یار میں نہیں کر سکتا سامنا، اس کا کیسے کروں، کیسے دیکھوں اسے اپنی بھابھی کے روپ میں؟ اگر ذرا سی بھی بھنک عزت کو لگ کہ وہ اس کے نکاح میں آنے سے پہلے میرے ساتھ تھی تو عزت اسے طلاق دے دے گا۔ ایک بار اسے اجاڑ چکا ہوں، بار بار نہیں اجاڑ سکتا۔ یار ان سب باتوں میں تیرا کو قصور نہیں، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں کہ تو ایک ہی لڑکی پر اپنے مستقبل کو وار دے۔ کہیں اور بھی دیکھ، ہزاروں لڑکیاں ہیں یار، جو بات اس میں ہے وہ ہزاروں میں کہاں؟ اچھا چل ایک بار ماں جی سے مل لے۔ نہیں یار، اب کی بار گیا تو وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گی، اور وہاں رہ کر میں اس کے لیے اپنے لیے عزام جا نہیں بننا چاہتا۔ نمل کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی نرگس اور زیان دونوں سے، لیکن زیان نمل کلی روتا تھا۔ نرگس کچھ سمجھ نہ پا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ نرگس کے پوچھنے پر وہ بات کو ٹال جاتی۔ نمل مارکیٹ سے واپس آئی تو دیکھا شاہ جی کی گاڑی نرگس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اندر اور ٹیرس کی طرف بھاگی۔ وہ تینوں لان میں بیٹھے ایوی تھے۔ جازب نے زیان کو پہلی بار دیکھا۔ امی یہ عزت کا بیٹا ہے؟ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جازب اسے گود میں لے کر چومنے لگا۔ نرگس شاہ جی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ وہ جازب کو زبردستی یہاں لایا تھا۔ باتوں باتوں میں شاہ جی بولا، ماں جی بھابھی کہاں ہے، ان سے تو ملوا دیں۔ وہ یہاں نہیں بیٹا۔ کیوں کہیں گئے؟ ہاں عزت کے ساتھ ہی ہے، لندن میں۔ جازب ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دونوں ایک ساتھ گئے تھے۔ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جازب اور شاہ جی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ امی ابھی لاسٹ ٹائم گھر میں آیا تھا
तो जियान किसी की गोद में था। वो लड़की कौन थी? इज़्द की बीवी नहीं थी क्या वो? अरे नहीं बेटा, वो कहाँ से इज़्द की बीवी? वो तो निमल थी, सामने वाले घर में रहती है। नरगिस की बात सुनकर जाजुब के चेहरे के बदलते तासुरात नरगिस से न छप सके। तुम है क्या एवा? इतनी मानी खेज मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। तमेरी खैर तो है। जाजुब को ऐसे लगा जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल हो। इसके चेहरे पर खुशी चेपाए नहीं छप रही थी। नरगिस शाहजी को भी खुश देखकर थोड़ी परेशान हो गई। जाजुब इससे वादा करके गया कि अब एमशा के लिए लूटना कुछ दिन बाद, और वो अपने वादे के मुताबिक शाहजी के कुछ मामलात निमटा कर लूट आया। अब इसकी वापसी का कोई जवाज ही नहीं था कि वो नरगिस से अलग रहता। इसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। नरगिस जियान की खरीदारी कली मार्केट के एओ थी। इसके साथ आरिफ की बेटी मोमिल भी थी। निमल ने जाने से इनकार कर दिया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। नरगिस ऑटो रोकने कली रोड क्रॉस करने लगी तो वहां से स्पीड में गुजरती कार ने नरगिस को उठाकर रोड के बीच फेंका। देखते ही देखते लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया। मोमिल ये देखकर घबरा गई। नरगिस का फोन मुसलसल बज रहा था। मोमिल ने इनके बैग से रोते एवी फोन उठाया। दूसरी तरफ जाजुब था। मैं कब से फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहे? मोमिल रोते रोते बोली, नरगिस आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। खबर थी या धमाका? कहाँ है वो? कहाँ एवा? एक्सीडेंट जगह बता मुझे। जाजुब पागल हो रहा था। मोमिल के साथ जियान भी रो रहा था। मोमिल ने रोड और शॉपिंग मॉल का नाम बताया, लेकिन जाजुब के वहां पहुंचने तक एम्बुलेंस में नरगिस को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। मोमिल और जियान को मिसेस आरिफ घर ले गए। निमल नरगिस के साथ हॉस्पिटल में थी। जाजुब वहां किसी से पूछकर हॉस्पिटल पहुंचा। 3rd फ्लोर पर थी नरगिस। वो भागता एवा ऊपर आया तो सामने खड़ी निमल से जा टकराया। निमल संभल ना सकी और गिर गई। जाजुब अपने कदमों पर खड़ा रहा। उसने जल्दी से निमल को सॉरी कहा। मां की खबर सुनकर उसे इतना भी गिना दिया कि टकराने वाली इससे निमल थी। नरगिस को सर की चोट लगी थी। वो बेहोश थी। नरगिस का अंदर सीटी स्कैन चल रहा था। यहां क्यों ये हो तुम? निमल की आवाज पर वो पलटा। तमेरी पीछे नहीं आया यहां? नरगिस आंटी कली हो तो चले जा यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं यहां। वो पहले ही बहुत परेशान था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इनको अकेला छोड़कर चला जाए सिर्फ इसलिए कि तुम यहां मौजूद हो? जी हां, क्योंकि तुम्हारा वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ना करो बर्दाश्त, चली जा यहां से। वो तंस भरे लहजे में बोली। वाह क्या खूब कहा। एक औरत को तमेरी आसरे छोड़ जाए। क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? जाजुब इसकी नजरों में शकूक देखकर समझ गया था। मुझे छोड़ो, अपना बता तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? वो फिर से घबरा कर झूठ बोली। मम्म मैं बहू हूं इनकी। उचनालिफ वो सीने पर हाथ बांध कर बोला। कौन से बेटे की? निमल को नाम ही नहीं मालूम था। कैसे बताती? लेकिन जाजुब के सामने डट कर बोली, तुम्हें इससे क्या? चले जा यहां से तो अच्छा होगा, वरना क्या? वो इसके करीब एवा। वो पीछे हटी। मैं यहां सिक्योरिटी से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जा शौक से करो। निमल इसकी डेटा पर उसे घूरने लगी। मुझे क्यों आंखें दिखा रही हो? जा करो मेरी कंप्लेन, जाना। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने लगी। तुम्हारी बदमाशी यहां नहीं चलेगी। डॉक्टर बाहर तो वो दोनों इसकी तरफ बढ़े और एक साथ बोले, अब कैसी है वो? खतरे की बात नहीं। स्कैन कर है इनका, इंटरनली ब्लीडिंग नहीं है। निमल फौरन बोली, सर मैं मिल सकती हूं उनसे? जी नहीं, अभी तो वो बेहोश है। इनके टांके लग रही हैं। जब वार्ड में शिफ्ट एओ तो उनसे मिल लेना। अब फिलहाल ये इंजेक्शन ला दें। डॉक्टर के हाथ से पर्ची लेने कली दोनों ने हाथ आगे बढ़े। निमल फौरन बोली, सर मुझे दे, मैं ले आती हूं। जाजुब भी बोला,
सर में लाता हूं, अब मुझे दें। डॉक्टर दोनों को देखने लगा और निमल से पूछा, आप इनकी बेटी हैं? निमल ने हाँ में सर हिलाया, जी बहू हूं मैं इनकी। वो फिर जाजुब की तरफ पलटा और आप? वो निमल के सफेद झूठ पर उसे घोर कर बोला, माँ है वो मेरी। जाजुब के मुंह से नरगिस कली माँ का लफ्ज सुनकर निमल के पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर पर्ची जाजुब के हाथ में थमा कर चला गया। जाजुब हैरानी से मुंह खोले निमल को देखकर बोला, बोनट बंद कर लो। इसे कुछ समझ ना आया। जाजुब मेडिसिन लेने चला गया और निमल खुद को दिल ही दिल में लानत मलामत करती रही कि जाजुब और नरगिस को लेकर वो क्या किया सोचती रही। निमल का दिल चाहा वो अपना मुंह नोच ले। शर्मिंदगी के बाइस वो वहां रुकी नहीं। आरिफ अंकल के ड्राइवर को फोन करके वहां से 9-2-11 हो गई। इज्द के ऑफिस में पार्टी थी। वो राबा को सिर्फ इतना बता गया था कि वो आज लेट आएगा। पार्टी में शरारत से किसी ने इज्द को शराब पिला दी। इज्द की हालत काफी खराब हो गई शराब से। इज्द की ऑफिस के 2 कोलीग उसे घर ड्रॉप करने। रात के 2 बज रही थे। राबा तन्हा और रात के खौफ से घुटनों पर सर रखे जागी एओ थी। बैल बजने वो डर से उछल पड़ी। जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो बाहर इज्द को कंधों का सहारा दी 2 आदमी और थे। एक तो वो पहले ही डरी एओ थी, ऊपर से इज्द को उस तरह देखकर मज़्द डर गई। क्या एवा है इनको? मैम किसी ने इनको शराब पिला दी थी। हम बड़ी मुश्किल से घर लाए हैं इनको। वो वहीं दरवाजे पर ही खड़े थे। बेडरूम कहाँ है अब बता दें, हम उन्हें लिटा देते हैं। नन्नन नहीं, आप यहीं सोफे पर लिटा दे इनको और जाए। वो सोफे पर इज्द को डालकर रुके नहीं चलेगी। राबा ने जल्दी से गेट लॉक किया और इज्द के पास ही। इज्द बिल्कुल एविश में नहीं था। अजीब तरह से वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। राबा इसके शूज उतारने लगी तो उसने राबा को दोनों हाथों से पकड़ा। क्या कर रही हो? उधर मेरे पास। उसने ताबा को खींचा अपनी तरफ। इज्द एविश में नहीं था। प्लीज हाथ छोड़ी मेरा, वो गेबुरा। पर उसके छुड़ाने पर इज्द की गिरफ्त उस पर मजबूत होती। इज्द उस तरह मत चेओ मुझे, आप अपने एविश में नहीं छोड़ी मुझे। पर इज्द उसे छोड़ने को तैयार ना था। बहुत मुश्किल से राबा ने खुद को छुड़ाया इज्द से और भागकर बेडरूम में खुद को लॉक कर लिया। वो दूसरी बार अपनी इज्जत पामाल होते नहीं देख सकती थी। इज्द इसका शौहर था, लेकिन इज्द के नशे की नजर वो खुद को नहीं कर सकती थी। इसकी दानिस्त में बीवी से जबरदस्ती करना भी रैप ही था। इज्द कुछ देर बाद उल्टियां करने लगा। राबा ने डरते डरते दरवाजा खोला, फिर आहिस्ता से इसकी जेब से फोन निकालकर असवद का नंबर डाल करके उसे बुलवाया। असवद आधे घंटे में पहुंच गया। इज्द की हालत काफी खराब थी। असवद सर्जिकल सर्जन था। वो इंजेक्शन अपने साथ लाया और इज्द को लगा, फिर उसे बेड पर लुटाया। भाभी अब परेशान ना हो, सुबह उठकर ये बिल्कुल ठीक होगा। राबा मुंह चेपा रो रही थी। अगर को परेशानी एओ तो अब मुझे फिर कॉल कर लेना, मैं जानेगा। अव्वल तो इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी क्योंकि अब ये सुकून से सोया रहेगा। फिर भी आपको परेशानी एओ तो मैं हाजिर हूं। असवद चला गया। राबा अपने कमरे में जाकर लेटी। आज से 2 साल पहले का हादसा और अभी इज्द की जबरदस्ती पर वो फूट फूट कर रो। हालांकि इज्द से वो खुद को बचा चुकी थी। इज्द सुबह उठा तो इसका सर चकरा रहा था। इसे कुछ याद न था कि रात को क्या एवा था। नहा कर वो बाहर आया तो राबा चाय बना रही थी। वो उसके पीछे आया, मुझे काफी बना दो 1 कप। राबा 5 मिनट में काफी बनाकर इसके कमरे में टेबल पर मग रखे वो जाने लगी तो इज्द ने इसके होंठों पर जख्म देखकर उसे रोका। रुको। वो इसके करीब आया। ये तमेरी होंठों पर। राबा ने जल्दी से दोपट्टा दुरुस्त किया। उसने ताबा के हाथ पकड़े। एक मिनट फिर इसका दोपट्टा इसके चेहरे से हटाया। इसके गालों पर दांतों के निशान देखकर इसका खून उबलने लगा। इज्द की आंखें देखकर राबा मज़्द सहम गई। कौन आया था यहाँ? इज्द की गिरफ्त इसके हाथों पर इतनी टाइट थी कि राबा को लगा इसके हाथ टूट जाएंगे।
وہ خوف کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ کون آیا تھا یہاں؟ عزت کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ عزت کی آنکھیں غصے اور شک کے لاوے سے ابل رہی تھیں۔ کون آیا تھا یہاں میری غیر موجودگی میں؟ رابعہ کی سانسیں اس کے حلق میں جا اٹکے۔ عزت کے ایک ہاتھ میں رابعہ کے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں پینٹ کا بیلٹ تھا۔ جاری ہے۔